Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. I, Shama Parveen, your science educator, welcome you in my today's session. In our today's session, we are going to start chapter number 4. And the name of this chapter is photosynthesis in plants. ठीक है? So photosynthesis in plants का क्या मतलब है? इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ओके, सो कम विद मी एंड स्टार्ट द चैप्टर. चलो देखो, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है. यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 3 पिक्चर्स आर गिवन, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी इन तीनों में से अपना खाना कौन खुद बनाता है. ठीक है, तो कौन अपना खाना खुद बनाता है? प्लांट्स. प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना वो खुद बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड इनटेक एंड वी ह्यूमन बीइंग्स also rely on plants for our food intake. Okay, so plant is those organisms who make their own food. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब ये देखो कि प्लांट वेयर ऑन अर्थ बिफोर ह्यूमंस. अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स. ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. देखो, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमंस, okay, means before the birth of humans, plants are present. Okay, means before the evolution of human beings, plants are already present on this planet earth. Okay, a plant has a many part. Okay, means a body of a plant contain many parts. Okay, and each part of the plant have a very important role to play. So there are 4 basic parts of the plant. Leaves. And what are those 4 basic parts of the plant? You can see here: leaves, roots, stems and flower. Here you can see, my dear student, roots of the plant, leaves of the plant, stem of the plant and flower of the plant. Okay, so these all 4 are the basic part of a plant. Okay, now my dear student, in this chapter we are going to see all these parts in detail. Okay, now see. Okay, most of the plant, generally most of the plant grow in ground. Okay, means more than 70-80% plants grow on the ground. Okay, it means what? Plants grow on the ground. It means what? It means the stems of the plant are above the ground and roots are below the ground. Okay, see, water and some nutrients come from the roots. Okay, so water and other nutrient contain which plants get, they always came from the root area. Okay, so there is a process in plant is called as transpiration. Now what is the meaning of transpiration? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, my dear students, evaporation of water from pores in the leaves pull water through the plant. You can see, my dear student, leaf. Okay, in a leaf you can see there are holes. Holes are present. Okay, so through that hole evaporation of water take place. Okay, in the leaf, okay, we can see a large number of holes are present. So through those holes evaporation of water take place. Okay, it means water pulls through the plant. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. आप देखते हो ना, पत्तों में काफी सारे छेद होते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि उन्हीं में से प्लांट के पास पानी आता है और पानी जाता है. ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ अ प्लांट नीड्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर टू मेक देयर फूड. I already explained you that plants are only thing which prepare their own food. So for making their own food, plant need sunlight, carbon dioxide, minerals and waters. Okay. Chlorophyll. There is a process called chlorophyll is present in plants. Now what is the meaning of chlorophyll? A green substance, means a green colored substance which is present in plants through which leaves and plants appeared as green in color. हम कहते हैं ना कि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, अब ये क्लोरोफिल क्या करता है?
क्लोरोफिल सन से एनर्जी को लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, उसको ट्रैप कर लेता है खाना पकाने के लिए, ठीक है। सी, plants always appear as green in color due to the process of chlorophyll, and chlorophyll means a process which trap the energy of sun to make the food of plants. क्लोरोफिल हर पत्तियों में पाया जाता है, मोस्टली पत्तियों में क्लोरोफिल आपका पाया जाता है, और वो कहाँ पे होता है, वो प्लास्टिड्स के अंदर होता है। अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, विच आर इनसाइड द लीफ सेल। देखो, क्लोरोफिल आपके पत्तियों में मिलता है प्लास्टिड्स के अंदर, और प्लास्टिड्स वो पार्ट होता है लीफ का जो कि आपका लीफ सेल के अंदर होता है, ठीक है। द लीफ कैन बी थॉट ऑफ एज अ फूड फैक्ट्री, इसीलिए लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं। देखो, आप कंफ्यूज मत होना माय डियर स्टूडेंट, क्लोरोफिल का क्या मतलब होता है। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन कलर की दिखती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की ही वजह से पत्तियां ग्रीन कलर की हमें दिखती हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल वो प्रोसेस होता है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है अपना खाना पकाते हैं। बट ये क्लोरोफिल कहाँ पर है, क्लोरोफिल प्लांट में एक पार्ट होता है प्लास्टिड, ये उसके अंदर होते हैं, और प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल वी कैन कॉल देम लीव एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ओके। सी, लीफ क्या होता है, आप सबको पता है कि ग्राउंड के ऊपर होता है और हमें दिखता है लीफ, कभी भी लीफ आपको जमीन के अंदर नहीं मिलेगा, लीफ हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है, लीफ में फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ का स्ट्रक्चर जनरली फ्लैट होता है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, इट इज ऑलवेज फ्लैट इन नेचर, ठीक है, ये फ्लैट होता है ऊपर से, थिन होता है, और फ्लैट और थिन होता है, ठीक है। और फ्लैट और थिन क्यों होता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना है, और साथ ही साथ इसको लाइट भी एब्जॉर्ब करना है। रिमेंबर क्लोरोफिल, ओके। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बहुत तरीके के लीव्स होते हैं, कोई सर्कल में होता है, तो कोई एकदम पूरे इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। वी कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, ओके। नाउ which let us distinguish the different kinds of plants, but each leaf is formed by the following parts। आप देख सकते हो किसी प्लांट का लीफ किस और तरीके का होता है, जैसे सनफ्लावर का लीफ कुछ और है, रोज का कुछ और है, ठीक है, लेकिन आपको पता है सारे के सारे लीफ में कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है। हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। Now we are going to discuss a structure of leaf in detail. So the first part of our structure of leaf is blade, ओके। अब ब्लेड क्या होता है, ब्लेड इज द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस इज द ब्लेड, आप देख सकते हो ब्लेड ये क्या है, ये हमारे लीफ का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है ना, इसी को ब्लेड कहा जाता है। द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर लीफ इज कॉल्ड ब्लेड, ठीक है। It is the most conspicuous part, okay, and blade is further divided into two parts, okay. The first part is veins and midrib, and the second is margins। veins का क्या मतलब होता है, ठीक है, आप देखते हो ना पत्तियों में रिंकल लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा लगता है कि झुर्रियां पड़ी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है, और उसमें पाइप लगे होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, ये सब देखो, ये सब देख रहे हो, हाँ, यही आपके ब्लेड के पार्ट होते हैं, मतलब वेन्स एंड मिडरिब, ठीक है। आप देख सकते हो हियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लेड, ओके। अब ब्लेड में आपको वेन्स और मिडरिब्स मिलती हैं, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरे ब्लेड है, और ये देखो ये जितनी भी टिश्यू की है ना, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा आपका वेन है, ठीक है। ये पूरा ऐसा लगता है कि रिंकल्स की तरह हमें दिखते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे वस्कुलर बंडल्स होते हैं जो स्टेम्स के पास आते हैं, ठीक है, सेंट्रल वेन कॉल्ड मिडरिब। अच्छा ये देखो, ये आपको दिख गया, वेन्स आपको दिख गया, ये वेन्स होती हैं, ठीक है। मिडरिब क्या होता है, मिडरिब का मतलब होता है जो ये स्टेम है, यहीं पे तो स्टेम होगा उसका प्लांट का, यहां से जो ये पोर्शन आ रहा है इसी को कहा जाता है आपका मिडरिब, ठीक है। आप समझ गए। देखो जो लीफ होता है ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लीव्स इज ब्लेड, ओके। अब ब्लेड का मतलब क्या है, ये जो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्लेड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, वेन्स एंड मिडरिब्स। वेन्स का मतलब क्या होता है, ये जितने भी टिश्यूज हमें दिखती है ना, ये सारे वेन्स हैं, और मिडरिब जो कि स्टेम्स
से आपके पास आता है, ठीक है ना। मार्जिन और एजेस, ठीक है, मार्जिन और एजेस क्या होते हैं, रिम और फाइनल लिमिट ऑफ द ब्लेड, ठीक है। मार्जिन और एजेस से ही पता चलता है, मार्जिन का मतलब जो कॉर्नर वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, और क्या है ये आपका एज, एज मतलब ये जो कॉर्नर वाले जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, मतलब ये बॉर्डर फॉर्म करता है एक लीफ के लिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेड। Okay, now the another part in which leaf is divided is called as petiole. अब ये petiole क्या होता है, let's have a look. ये होता है आपका connection of the stem to the blade. petiole वो होता है जो blade को stem को एक दूसरे से connect करता है. Here you can see this is your blade. Okay, ये क्या है, ये blade है, ठीक है. Here you can see, but this blade is connected through a tube-like structure. So this tube-like structure is called your petiole. Okay, petiole connects blade with the stem of the plant. Okay, so जो blade को और stem को connect करता है उसको हम petiole कहते हैं, ठीक है. अच्छा ये देखो, बहुत से प्लांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, सबकी अपनी अपनी शेप होती है, ठीक है. Those leaves having a petiole, no matter how long it may be, are called petiolated. आप देखते हो ना, बहुत से लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे प्लांट्स में petiole प्रेजेंट होता है, ठीक है. There are some leaves without petiole. In this case, they are called as stalk leaves or sessile. अच्छा, मैक्सिमम प्लांट्स में ऐसा शेप होता है, ठीक है, लीफ अलग होता है, स्टेम अलग होता है, उनको कनेक्ट करने वाले को हम पिटियोल कहते हैं. पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जिनमें ये पिटियोल होता ही नहीं है. मींस द ब्लेड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टेम. ओके, मींस ओनली 10% प्लांट्स in which petiole is absent. Okay, means blade is directly connected with the stem. Okay, so the plant in which petiole is not presented we called as sessile. Okay, समझ में आया आपको petiole क्या होता है. petiole जो blade को stem से connect करता है उस portion को हम petiole कहते हैं. Okay, now see, लीव्स हैव मेन बाय 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अभी मैंने कुछ टाइम पहले सेल टिश्यूज के बारे में बात किया था कि क्लोरोप्लास्ट आपका प्लास्टिड के अंदर है, और प्लास्टिड कहाँ है, लीफ के सेल्स के अंदर है. सो हियर माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द टिश्यूज और द सेल्स ऑफ द लीफ. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर लीफ इज एपिडर्मिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडर्मिस? सी, one cell thick and secretes away cuticles to prevent water loss. एपिडर्मिस का मतलब ये होता है कि जो सेल होता है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है और ये वाटर लॉस होने से बचाता है. एपिडर्मिस का सीधा सीधा मतलब है ये वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है. पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस, ठीक है. एपिडर्मिस भी आपके 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप देख सकते हो. दिस इज योर अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज योर लोअर एपिडर्मिस. ओके, दिस पोर्शन इज योर लोअर एपिडर्मिस एंड दिस पोर्शन इज योर अपर एपिडर्मिस. ओके, स्टोमेटा. ओके, स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस. ओके, स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस, ठीक है. अच्छा, अभी हमने क्या देखा इससे पहले, हमने इससे पहले देखा कि जो लीव्स होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, हमने लीव्स के पार्ट देखे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर लीव्स. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर लीफ इज एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस क्या होता है, इन शॉर्ट ये वाटर लॉस होने से प्लांट्स में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. और स्टोमेटा हमारे लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है. अब ये स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा मींस द फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनटू एंड आउट ऑफ द लीफ. ओके, स्टोमेटा is a process which regulates, okay, which regulates the flow of carbon dioxide and oxygen into and out of the leaf. Okay, stomata which is present in the lower epidermis cell of the leaf, it regulates the flow of carbon dioxide and oxygen into and out of the leaf. Now the second part of the leaf cell is mesophyll. Now what is the meaning of mesophyll? Okay, the process of photosynthesis occurs here. Okay, the preparation of food through the process of photosynthesis occur in mesophyll cell. Okay, तो mesophyll भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है.
ठीक है, जैसे एपिडर्मिस आपका लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस. सिमिलरली मेसोफिल is also divided into two parts, palisade cells and spongy cells. Okay, now what is the meaning of palisade cells? Palisade cells का मतलब होता है cell arrangement maximizes exposure of light. पैलिसेड्स वो सेल्स होती हैं जो प्लांट्स को सनलाइट का एक्सपोजर देती हैं. ठीक है, इनका काम होता है सनलाइट से एक्सपोजर करना लीव्स का. ठीक है, स्पंजी सेल्स लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स लीविंग एयर स्पेस फॉर गैस एक्सचेंज. देखो, मेसोफिल का मतलब होता है process of photosynthesis takes place here. So you all know, my dear student, for the process of photosynthesis sunlight is compulsory. Okay, so the first part of mesophyll, palisade cells, okay, they have to expose the leaf under sunlight. Similarly, spongy cells means spongy cells have to leave air space for gas exchange. Okay, means in spongy cell arrangements of cells are very loose. Okay, and that's why gas exchange easily happened here. Okay, now the third part of our leaf cell is vascular bundle. The meaning of vascular bundle is transport system of plant. Okay, इसका मतलब है vascular bundle का कि जो प्लांट का ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. ठीक है, यहाँ पे आपका जाइलम और फाइलम नाम की दो चीजें पाई जाती हैं. ठीक है, वस्कुलर बंडल में जाइलम होता है. जाइलम मींस वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, वो टिश्यू जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में. ठीक है, थ्रू जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन अकर्ड इन प्लांट बॉडी. एंड फाइलम मींस sugar transportation. Okay, now my dear students, we are going to see about the process of photosynthesis. Okay, the meaning of photosynthesis is the process through which green plants make their own food. ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस शुगर विद सेलुलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट इनटू एटीपी, द फ्यूल यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? जो बैक्टीरिया और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, वो सनलाइट लेते हैं और साथ ही साथ वो रेस्पिरेशन सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में. एटीपी फ्यूल होता है एक तरीके से. ठीक है, और वो फ्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सी हियर यू कैन सी दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप देखो, ये सनलाइट है और यहाँ लीफ के अंदर खाना पक रहा है. ठीक है, so this is the picture showing the process of photosynthesis. Now, the conversion of unusual sunlight into usual chemical energy is associated with the action of green pigment chlorophyll. अच्छा, क्लोरोफिल की वजह से आपको पता है हमारी ग्रीन लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर्ड में हमारे सामने आती है. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो अनयूजेबल सनलाइट है वो कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल केमिकल एनर्जी में, तभी तो हमें ग्रीन कलर में दिखता है. ठीक है, नाउ अच्छा, अब हम ओवरऑल अगर मैं एक समरी बनाऊं फोटोसिंथेसिस का तो उसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये 6 molecules of water plus 6 molecules of carbon dioxide means 6 molecules of water plus 6 molecules of your carbon dioxide equal to means 6 molecules of water plus 6 molecules of carbon dioxide produces 1 molecule of sugar and 6 molecules of oxygen. ठीक है, देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब आप प्लस करते हो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हमें एक सम देता है और वो सम हमारे पास आता है शुगर के 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के तौर पे. ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ मैजिकल कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ग्रीन लीफी प्लांट्स. ठीक है, और ये मैजिकल क्यों है? बिकॉज इट ग्रैब्स द सनलाइट एंड स्टार्ट द होल प्रोसेस. ओके, chlorophyll is a magical element present in our green leafy plants, okay, because it traps the energy of the sun, and after trapping that energy of the sun the whole process of photosynthesis takes place. ठीक है, अच्छा देखो, क्लोरोफिल बहुत ही मैजिकल एलिमेंट है. अगर क्लोरोफिल नहीं है देन नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस. ओके, नाउ हियर यू कैन सी क्लोरोफिल इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल कहाँ पे था? प्लास्टिड के अंदर था, लेकिन प्लास्टिड तो एक बड़े अमाउंट पे हो गया. ठीक है, बट लीव्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो क्लोरोफिल आपका जनरली आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. ठीक है, अब देखो, द अदर बिग मॉलिक्यूल्स आर वाटर,
H2O, carbon dioxide, oxygen and glucose. Apart from sunlight, what other elements plants need to prepare food? Water, carbon dioxide, oxygen and glucose. Okay, here you can see all the chemical name, means all the chemical formula is written here. Water means H2O, carbon dioxide means CO2, oxygen means O2 and glucose means C6H12O6. Okay, so this all are the chemical name of these elements. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर with light means carbon dioxide plus water plus light, it gives us oxygen and glucose, means not give us, it gives plants oxygen and glucose. Now what is the meaning of glucose? देखो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है. तो animal cells require oxygen to survive. Animal cells needs an aerobic environment, one with oxygen. Okay, now we are going to see what are the functions which leaves have to perform. See, leaves are different in shape and size. आप सबको पता है कोई भी लीफ सेम नहीं होता, सबके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, सबके डिफरेंट शेप्स होते हैं. सो द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लीव्स इज, देखो मोस्ट प्लांट्स फूड इज मेड इन देयर लीव्स, ठीक है, लीव्स में ही खाना पकता है प्लांट्स का, ठीक है. लीव्स इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मींस जो लीव्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो सनलाइट को इजीली ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली ट्रैप करने के बाद खाना वो पका सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, द सेकेंड फंक्शन डन बाय लीव्स आर, लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है. द थर्ड इज प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा आप जानते हो, स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर है वो उसको निकाल देते हैं, ठीक है. अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स मेक देम रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड शुगर्स, ठीक है. चलो, अच्छा एक यहाँ पे टेस्ट आप लोगों को करना है, ठीक है. एक बहुत ही ग्रीन लीफी आप लीजिए, मतलब एक बहुत ही हरा भरा सा पत्ता आप लीजिए, ठीक है. आपको क्या करना है, बार बार एक ही चीज रिपीट करना है, आप उसको बॉईल करते रहिए, ठीक है. ये आपको जरूर करना है, इससे आपको पता चलेगा स्टार्च के बारे में, ठीक है. देखो इसमें क्या करना है, आप एक काम करो, हाफ फिल अ बिकर विथ वाटर एंड बॉईल द वाटर. बिकर का क्या मतलब है, आप इस टाइप का एक कंटेनर लीजिए. एक्चुअली दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन इजिली परफॉर्म इन योर साइंस लैब, ठीक है. आप इस टाइप का एक कंटेनर लीजिए, इसमें पानी भरिए, उस पानी को बॉईल करना शुरू कीजिए. उसके बाद इसमें एक पत्ता डाल दीजिए, ठीक है. जब ये पानी बॉईल होने लगे तो इसमें एक पत्ते को डाल दीजिए, 1 और 2 मिनट के लिए उस पत्ते को बॉईल कीजिए, ठीक है. उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब आप डालिए, ठीक है. उस टेस्ट ट्यूब में जो ये पहले से ये जो लीफ बॉईल हो रहा है ना, ठीक है, उस लीफ को आप उसमें डालिए. फिर आपको क्या करना है, देन पुट द लीफ इनटू द बॉइलिंग ट्यूब एंड पोर एनफ एथनॉल टू कवर द लीफ, ठीक है. तो जब आप इस ट्यूब में इस पत्ते को डाल दोगे तो इसके ऊपर से आपको एथनॉल डालना है, ठीक है. और इतना अमाउंट में आपको एथनॉल डालना है कि वो पूरा का पूरा एथनॉल आपके लीफ को कवर कर ले, ठीक है. उसके बाद प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इनटू द बिकर ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है. इस ट्यूब को जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है वापस से इस बॉइलिंग वाटर में आप डाल दीजिए, ठीक है. A water bath is used to prevent accidents that may arise from alcohol being inflammable, ठीक है. अच्छा ये देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना है क्योंकि एक तरीके से आप एथनॉल डाल रहे हो, ठीक है. यहाँ पे वो क्या है, अल्कोहल है. अल्कोहल बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल डिवाइस है, ठीक है. रिमूव द फ्लेम एंड एथनॉल बॉइल्स, ठीक है. आप ये जिसपे भी आप बर्नर है, बर्नर को आप बंद कर दीजिए जब पूरे तरीके से एथनॉल बॉईल हो जाए, आपको दिखेगा कि वो बॉईल हो गया है. रीइंट्रोड्यूस द फ्लेम व्हेन द एथनॉल स्टॉप्स बॉइलिंग, रिपीट अंटिल द लीफ इज डिस्कलर्ड. तो फिर से आपको सेम यही प्रोसेस करना है. ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो बंद कर दिया, नहीं, आपको ये प्रोसेस करना है. पर कब तक करना है, आपको तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक once a green leaf turned discolored. ओके, पहले तो वो एकदम ग्रीन कलर में था पर अब वो ग्रीन कलर रहा ही नहीं, आपको तब तक उसको बॉईल करना है. मतलब इस प्रोसेस को आपको फिर से रिपीट करते रहना है, ठीक है. अच्छा अब ये देखो, आपको हम ये एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं, हम मुझे मिलेगा क्या इसको करके. लेट्स सी. When the chlorophyll has been removed, the leaf looks white. Remove the leaf from ethanol. देखो जो क्लोरोफिल हट जाएगा, आप जानते हो ग्रीन कलर क्यों हमें दिखता है, क्लोरोफिल की वजह से.
तो इस प्रोसेस के थ्रू ना आपका क्लोरोफिल हट जाएगा और आपका जो लीफ का कलर है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप जब ये प्रोसेस कर लोगे, जब आपका लीफ ग्रीन से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उस लीफ को निकाल लो। ठीक है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, डिप द लीफ इन वाटर टू सॉफ्टन इट। ठीक है। आप उसके बाद क्या करोगे, जो लीफ का बॉईल की हो, जो ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, उसे पानी में आप डालिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। यूज अ पाइपेट, यू एड डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द लीफ सरफेस। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो आपको क्या करना है, आयोडीन का सोल्यूशन इसके ऊपर डालना है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर the leaf turns blue black. This shows the presence of starch in the leaf. ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या होगा, ये जो लीफ है आपका, ये ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो जितने पोर्शन में वो ब्लू और ब्लैक कलर होगा, उतने पोर्शन में ये शो करता है कि प्लांट्स में आपका स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी को करने का ही मतलब ये है कि आपको ये पता चलेगा कि स्टार्च किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पास लीफ में। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दो एक्टिविटीज हैं जो आपको खुद परफॉर्म करनी है। ठीक है। आप देख सकते हो, पहली एक्टिविटी वो है जिससे आपको ये पता चलेगा कि सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है। और दूसरा आपको करना यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये दोनों एक्टिविटीज आपको खुद से परफॉर्म करने हैं। नाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स, वी आर गोइंग टू सी अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट्स। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर का नहीं है तो ग्रीन ही नहीं होता है, वो लाइट ग्रीन, लाइट येलो कलर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। देखो, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है। क्लोरोफिल की ही वजह से तो हमें ग्रीन प्लांट दिखता है। ठीक है। तो बहुत से प्लांट्स में हमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है। ठीक है। अब अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इट मीन्स दोज प्लांट्स कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड अपॉन अदर ग्रीन लीफी प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी क्या होता है, बहुत से ऐसे प्लांट्स और हैं, चलो एक तो प्लांट हो गया वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, पर बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। आपके एग्जाम्पल्स हैं मशरूम्स हैं, मॉल्ड्स हैं, क्रोटॉन प्लांट्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा ग्रीन लीफी प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फिर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है। तो अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स दोस टाइप ऑफ प्लांट्स कांट मेक देयर ओन फूड। ओके। बट how they are going to get their food? Okay, those type of plants always rely on or always depend on other plants for their food. Okay, and sometimes those plants also depend on dead and decayed animals for their food. Here you can see these are the examples of non-green plants like mushrooms, molds and croton. Okay, so my dear students, this is all for the chapter. Now we are going to do a quick revision of this chapter, what we learned through this chapter. The evaporation of water from pores in the leaf pulls water through the plant is called transpiration. We have learned about the process of transpiration. A green substance in plants called chlorophyll traps the energy from the sun. Chlorophyll, okay, chlorophyll is a substance present in the green leafy plants, okay, who traps the energy of the sun. Leaves are typically flat and thin so that can absorb as much as sunlight as possible. Okay, so leaves are usually typically flat in shape. Okay. The process by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. We also learned about the process of photosynthesis. And last but not the least, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Okay, so this is all in this chapter. I hope, my dear student, you got a very good understanding of this chapter. Now go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.